come to you with this really, really funny statement. Next 25 years key to lost glory, says Modi. Lost glory. Which period you think, pray, the PM's talking about? Obviously not the British time. Obviously he's trying to nail the Mughal time. Does he even know history? What was the time before the Mughals came? What India was like? What was it like? Which part? Is the Vedas that he's talking about? Nobody knows what glory we are going to get, folks. Or is it all about, folks? Is it all about? My glory is the IITs, the ISRO, the scientific institutions that have been set up in India. I am a product of an education system that I am proud of, right? And so are all the people who are CEOs across the world that we keep talking about and wanting to grab them as Indians and Indians and Indians, are all products of a scientific bent of mind. Whether they're the IITs, whether the IIMs, this is also glory. Glory is not building statues, mandirs, hey, Central Vista. Heck no, heck no. PM attempts being made to tarnish India's image. Let me just say this to you folks. We have fools in India doing it for us. The world doesn't need to tarnish us. We are doing it to ourselves, folks. Just remember, we are our own worst enemy. This is what then we try to hang on to besides the cow. Government looks to build brand around war memorial. Pray ask these guys which war were they really capable of fighting? Where and when? What were they leading? Except defensive actions, whether it was Kargil, we had to go and get back our own territory. China lost a territory. Doklam stood up, but it again gave up somewhere in between. But this is what we're really good at. Yeti denied by Haridwar court in hate speech case. Acknowledged Hindu phobia, India urges. You know, who's got Hindu phobia? I don't understand. Who's got Hindu phobia? I don't see any Hindu phobia anywhere. Because in fact, the Sikhs and the Buddhists, the Sikhs in the United States and the world over get it worse because of the turban. Hindu phobia? Give me a break. And this is what's really good. Karnataka Bajrang Dal leader who gave hate speech held for murder. Atmosphere of tension in India. Rajasthan CM in PM presence. We, folks, are our own worst enemy. Please find me a historic period. Glorify one for me, please. बल्ले बल्ले. बंदी की जाए. 6 महीने पहले योगी आदित्यनाथ का जलवा बरकरार था. जब दिल्ली दरबार और यूपी दरबार की लड़ाई हुई थी, उस समय योगी आदित्यनाथ इतने ओवर कॉन्फिडेंस में थे क्योंकि उनके सलाहकारों ने, नवनीत सहगल ने, अवनीश अवस्थी ने, इन तरह एसपी गोयल, इन तरह के जितने अफसर होते हैं, वो मैंने पहले भी कहा कि जो मुख्यमंत्री होता है, जो ताकतवर होता है, तो इस तरह के कुछ चमचे अफसर उसके चारों तरफ इर्द गिर्द हो जाते हैं, जो दिन भर कहते रहते हैं कि महाराज जी आपका तो बहुत जलवा जलाल बरकरार है, हर तरफ आपकी गूंज है, आप तो प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार हो. तो ये अफसर हो या सलाहकार हो, इस तरह के लोग हर बड़े नेता के आसपास हो जाते हैं. तो उस गलतफहमी में योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भिड़ गए. उसकी चर्चाएं लखनऊ से दिल्ली तक बहुत होती रहीं कि भाई क्या झगड़ा है दिल्ली दरबार का और उत्तर प्रदेश दरबार का. हालात यहाँ तक आ गए थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो ट्विटर अकाउंट है, बीजेपी का अधिकृत ट्विटर अकाउंट, उस तक से मोदी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो हटा दी गई थी. अब आप कल्पना करिए कि देश में जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, नरेंद्र मोदी आज तक लगभग हर चुनाव में नायक की तरह सामने आए हैं. मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय करके, और फिर प्रधानमंत्री की कंबाइंड होती है. मतलब प्रधानमंत्री का जलवा बरकरार है, आज भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है. ऐसे में किसी राज्य का मुख्यमंत्री इतनी हिम्मत करे कि ट्विटर अकाउंट से प्रधानमंत्री की फोटो ही हटा दे, तो जाहिर है कि उसको ये कॉन्फिडेंस होगा कि मैं इतना बड़ा नेता हूं कि मेरे नाम पे ही पूरी दुनिया चल रही है और मेरे नाम पे ही ब्रांडिंग हो रही है. शायद यही वजह होगी कि उन्होंने फोटो हटा दी होगी और उसके बाद दिल्ली दरबार ने इसको दिल पे ले लिया. लेकिन हालात ऐसे थे कि दिल्ली दरबार भी समझ गया था कि अगर योगी आदित्यनाथ को इस समय छेड़ेंगे तो कहीं ऐसा ना हो योगी आदित्यनाथ बगावत कर लें. तो लिहाजा अमित शाह ने लखनऊ में एक जनसभा में कह भी दिया कि भाई अगर प्रधानमंत्री को बनाना है 2024 में, तो 2022 में योगी आदित्यनाथ को ही मुख्यमंत्री बनाना है. और बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे उस समय राजनीतिक पंडित कह रहे थे कि अमित शाह ने ये बात योगी आदित्यनाथ का काम लगाने के लिए कही है. सभी मान रहे थे कि अमित शाह ने तारीफ नहीं करी है, बल्कि योगी आदित्यनाथ की बैंड बजाने का काम किया है, क्योंकि अमित शाह के ऐसा कहने से अचानक रिएक्शन होगा. क्योंकि पूरे प्रदेश में पिछड़ी जातियों में ये नाराजगी है कि केशव मौर्य को इस सरकार में बहुत बेइज्जत किया गया है, बहुत अपमानित किया गया है. कभी अपने बराबर में स्टूल में बिठाया गया है, कभी फोटो में. तो ये नतीजा हुआ कि अगर अखिलेश यादव और बनाम योगी हुआ तो चुनाव में बैंड बज जाएगी. तो रणनीति बनाई गई कि योगी जी को किनारे किया जाए. आपने देखा होगा बनारस का उत्सव, जिसमें गंगा जी में भी अलग केरे मोदी जी डुबकी लगा रहे हैं, और काशी के जो बड़े बड़े विज्ञापन छपे उसमें योगी आदित्यनाथ गायब थे. तो मुझे लगा कि शायद ये एक दिन का वाकया होगा, लेकिन आज टाइम्स ऑफ इंडिया में 4-5 पेज के विज्ञापन हैं. उसमें ये एक विज्ञापन गौर से देखिए. ये एक विज्ञापन फुल पेज का एक विज्ञापन है. इसमें प्रधानमंत्री हैं और इसमें फिर योगी आदित्यनाथ गायब हैं. अंग्रेजी के अखबार, हिंदी के सारे बड़े अखबारों में ये विज्ञापन दिया गया है. इन विज्ञापन में नरेंद्र मोदी जी हैं और योगी जी फिर गायब हैं. और ये विज्ञापन है
155 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम द्वारा 1,40,000 मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों का शुभारंभ इनको अमित शाह को करना था, माननीय मंत्री गृह सहकारिता भारत सरकार के। अब मजे की बात देखिए कि उत्तर प्रदेश का विज्ञापन छप रहा है, विज्ञापन, इसका पैसा उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है। अमित शाह को उद्घाटन करना है, लेकिन ना अमित शाह का फोटो है इसमें, ना योगी आदित्यनाथ का फोटो है। मतलब आज सारे बड़े हिंदी अखबारों में, अंग्रेजी अखबारों में करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का चेहरा फिर हटा दिया गया है। मतलब साफ है कि योगी आदित्यनाथ को मोदी सरकार किनारे करने में लग गई है। अब देखना यह है कि योगी आदित्यनाथ को यह समझ आता है नहीं समझ आता कि दिल्ली दरबार ने तय कर लिया है कि अगर बीजेपी सरकार बनेगी तब भी वो अगले मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहे हैं। चुनाव से पहले उनको किनारे किया जा रहा है। एक बार उन्होंने ट्विटर पे से मोदी की तस्वीर हटाई थी, अब मोदी उन्हीं के पैसों से उन्हीं के अखबारों में उनकी तस्वीर हटा रहे हैं। तो मुझे तो खबर ये मिली है कि योगी आदित्यनाथ हट रहे हैं, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये जो तर्क दिया जा रहा है, जब अमित शाह साहब यहां से दिल्ली वापस गए हैं तो तर्क ये दिया जा रहा है कि सब गुजरात में परिवर्तन हुआ, हालचाल ठीक हो गए जब रूपानी जी हटे, कर्नाटक में येदियुरप्पा हटे, हालचाल ठीक हो गया है, उत्तराखंड में जब नए मुख्यमंत्री आए हैं ये हालचाल ठीक हो गया है, तो यूपी में क्यों ना हालचाल ठीक किया जाए जब यूपी में इतना बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है। और 2 सर्वे दिखा रहे हैं कि योगी के नेतृत्व में चुनाव करा के क्यों रिस्क मोल लिया जाए, ये चर्चा चल रही है। अब कहां तक सही है, दिल्ली के नजदीक आप लोग बैठे हैं, जरा मालूम करिए आप। As you heard the videos about by Surya Pratap Singh and Sanjay Sharma, Surya Pratap 2 months ago, Sanjay Sharma 1 month ago, all had suggested that their Sutrakars had told them that Yogi was on his way out. No matter which way you play it, no matter which way Godi Media plays it, which way the BJP plays it, his moving to Gorakhpur is sidelining him, especially when the big boys, the fat big boys, Nada and Amit Shah, unfit guys, have reached the Uttar Pradesh. But before that, I want to read another essay like I've been doing, right? It's about this. By Ashutosh Vashni, The Idea of India. He says, are the various diversities of India, religious, linguistic, caste-based, being flattened by the rising of a tide of Hindu nationalism? Are more and more Indians beginning to believe that Hindus and or Hindi speakers are the only true Indians? Is celebrating all kinds of diversities as the founding ideology of Indian nationhood contained in India's constitution and constructed under the combined influence of Gandhi, Nehru and Ambedkar coming to an end? Will the Hindu-Hindi-India equation go substantially further? If it does, then the paradox of having both a Hindu-centric identity and a subordinate civic identity which respects the constitution, existing laws in all religions simply can't last. The constitution is completely against the doctrine that only Hindus are true Indians. At this time, South India says the survey is leading the charge against politics that equates Hindi with India. On the measures relevant to this equation, South India differs radically from northern and central India. Parts of the east, as we know, have also joined the pushback. If this pushback expands its geographical ambit, the Hindu-India politics will be weakened and the superordinate identity will become stronger. If the BJP manages to reverse this pushback, India will be headed towards a breakdown of its superordinate civic identity. Political struggles of the coming years are thus monumentally important. And I think the first breakup, folks, has happened. Not only South India, but the caste breakup in Uttar Pradesh. Yeah, hallelujah. फैसले के बाद कभी उनके करीबी रहे और योगी आदित्यनाथ को अपना गुरु मानने वाले सुनील सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा है, कहीं नोट कर लीजिए बाबा, मैं सुनील सिंह आज घोषणा करता हूं कि इस बार का चुनाव आपके जीवन का सबसे मुश्किल चुनाव बना दूंगा। रिकॉर्ड मतों से हारने के लिए तैयार रहिए। गोरखपुर की धरती इस बार इनकलाब का नया इतिहास लिखेगी, घमंड हारेगा और संघर्ष की जीत होगी। सुनील सिंह का ये ट्वीट तब सामने आया जब योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से खुद को टिकट दिए जाने पर पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उम्मीदवार चयन समिति के प्रति अपना आभार जताया। सीएम योगी ने लिखा, आगामी विधानसभा चुनाव में मुझे गोरखपुर शहर से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संसदीय बोर्ड का हार्दिक आभार। सुनील सिंह फिलहाल समाजवादी पार्टी में हैं और संत कबीर नगर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कभी वो सीएम योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी रहे, उनको अपना गुरु बताकर उनके शिष्य के रूप में रहा करते थे, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं और एक बार फिर यहाँ पर योगी सरकार को वो हत्यारी सरकार तक कह चुके हैं। युवा दलित नेता चंद्रशेखर ने कहा था कि ये मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई है। चंद्रशेखर ने योगी आदित्यनाथ को लोगों के लिए खतरनाक बताया था।
चंद्रशेखर आजाद भी गोरखपुर से चुनावी मैदान में है। योगी को चंद्रशेखर किस हद जी मेरी 75 साल की उम्र हो रही, कभी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू सारे प्रधानमंत्री भुगत लिए, सारे मुख्यमंत्री भुगत लिए, पर ऐसा मुख्यमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री अजी मेरे तो देखने में आया नहीं। हाँ नहीं, मैं झूठा सच्चा क्यों कहूँ, जब देखने में ही नहीं आया। तो इस प्रधानमंत्री में क्या खास बात है जो देखने में नहीं? अजी मजमे लगाता है भाई बहनों, भाई भी भूखे फीट नहीं लगी भाइयों का भी, और बहनें भी बेचारी सड़कों पर फिरे भूखी। अरे ये मंदिर की जी, एक जब मंदिर की सुन लो। हाँ सुनो। मंदिर तो हमारा किसानों का तो खेत है। ट्रैक्टर जो जमीन जोतेंगे लोराम का ना, कटेंगे लोराम का ना, जो भी काम करेंगे हम अपनी जमीन के उस साधन से राम का नाम देख कर करें। हमारे गांव में 7 मंदिर है जी, 150 कुछ अब भी आ रही माँ, और 1000 पिल्ले पिले, 1000 कोई वहाँ पुजारी भी नहीं। क्या करें हम, मंदिर का मंदिर तो हमारा खेत है। वो करे डरा हुआ एकदम चीन पाकिस्तान 56 इंच छाती से। 56 इंच कहाँ गया, 40 तो ये ठुक गए थे यहाँ से पीछे से, यहाँ से इसमें कश्मीर में पुलवामा में जाके उन्होंने भी तो ठोक दिया बालाकोट में। कहने जी अजी नु फिर ठोकते रहो। कहाँ जी बालाकोट सर्जिकल बालाकोट झाड़ी फूंक दी। आप इतना मोदी जी से इतना गुस्सा क्यों लगा? अजी गुस्सा कहाँ कर रहा मैं तो गुस्सा नहीं, मैं तो बता रहा उनकी बात, मगर ऐसी बात और गुस्सा कर, मेरे गुस्से से वे हटते नहीं, मेरे गुस्से से वे आते नहीं। और अगर आपके गुस्से से हट जाए तो? हाँ हटा दूंगा जी। तो करें हिंदुत्व के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए योगी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो हिंदू कह रहे हम भी हिंदू, पर हमें नहीं मान रहे, मैं कहाँ मान रहे हम हिंदू, हिंदू तो हम भी। आपको क्यों नहीं मानेंगे? अजी नहीं हमें नहीं मान रहे, तो कहे हिंदुत्व है जो हमें मानते में, वे तो सबको कहते हैं रल मिल का काम करो भाई, हिंदू भाई भी मुसलमान भाई भी। दोस्तों, मोदी सरकार का एक तुगलकी फरमान, वो फरमान क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर। कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, यूट्यूब चैनलों पर होगा एक्शन, देश विरोधी कंटेंट चलाने पर कार्रवाई होगी, ऐसे यूट्यूब चैनलों पर होगा एक्शन। पहले तो मुझे माननीय अनुराग ठाकुर जो खुलेआम एक मंच पर जाकर देश के गद्दारों को गोली मारो जैसे नारे लगाते हैं, मंत्री होते हुए संवैधानिक पद पर बैठे हुए ये व्यक्ति जो हैं माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री, इस तरह के भड़काऊ नारे लगा रहे थे। क्या इन्हें अधिकार है इस तरह की बातें करने का? और क्या हम भूल गए कि अनुराग ठाकुर ने जो कहा था, कपिल मिश्रा ने जो किया था, और उसके बाद पूरे दिल्ली विधानसभा चुनावों में जिस तरह का जहरीला प्रोपेगेंडा बीजेपी ने फैलाया था, उसका नतीजा क्या हुआ था? दिल्ली में दंगे हो गए थे और कम से कम 60 लोगों की जान गई थी। इन्हीं नारों का परिणाम था, इन्हीं नारों का परिणाम था दोस्तों कि 2 युवा जो Actually, Priyanka has set the tone for not only the UP elections, for the rest of the state elections, and for the 2024, folks. And here's what we said: Priyanka declares herself Congress face in UP, evasive on contesting polls. Priyanka says she's Congress UP's face, no word of contesting. Both brother and sister launch a manifesto, and a very, very important manifesto that doesn't rely on jati. It talks about employment, it talks about inflation. And it got wind behind its sails. It's got what had happened about the elections, the municipal elections in Karnataka, in Maharashtra, and in this ruling Congress wins big in Chhattisgarh civic poll. BJP a distant second. BJP Congress wins in civic poll, strengthens Baghel's position. Then expelled Uttarakhand minister joins Congress. The battle. He says 6 years after felling Congress government, Harak Singh returns, so strong in Uttarakhand. And what do we have here? The battle of Hastinapur. A ladki in the mix, and this is changing. The ladki is changing everybody's game plan, including the Manuwadi BJP, right? Shah in Kairana today takes reins of BJP campaign in UP. Amit Shah to play bigger role in UP campaign. Goal is Cadre Connect. BJP names 26 women in its second list of UP polls. Courtesy Congress. 7 UP MLAs denied tickets in BJP's list of 85 candidates. So Adal Badal ensured that this list of ticket cutting was limited. And the fact that you must remember, folks, Amit Shah is not a Chanakya. It's no longer a Chanakya. Everybody's seen through. List all the losses he's had before making him into this big Chanakya. 30 seats to OBCs, 19 to Dalits in BJP's 4th list, UP list of 85. Aparna and Sanghmitra, BJP poster girls for women's security. Poster girls. That's all they're going to end up being. Poster girls. Amid rally ban, Shah Nara to hit ground running. Can you see these two guys running? I don't think so. I don't think they can run at all, right? More trouble for SPRLD as both field candidates of Bijnor seat. Cracks appear in Jat Muslim unity over ticket distribution. This was always going to be a problem, and Akhilesh has to worry about that. 4 farmers charged over BJP men drivers killing. 4 farmers have been charged. Where is this tiny fellow who's the Minister of State sitting? Folks, find out. 13 Sikhs, 12 farmers, 8 Dalits in BJP's Punjab list of 34. And this is a big hurt in Goa Parikar's son's
quits BJP head of polls. Parek's son not fielded in BJP's first list for Goa. This is going to hurt them in Goa for sure, folks. Jai Hind.